کیا چاہیے کیا چاہیے؟ ہاں جی بیٹے، ہاں جی بیٹے، کیسے ہو آپ سب؟ کیسے ہو آپ سب؟ چھٹیاں کیسی بیتی؟ چھٹیاں کیسی بیتی؟ پارک اینڈ فٹافٹ سے بیٹھو منو دھننجے بیٹھو فٹافٹ سے بیٹے، کلاس سٹارٹ ہو گئی. میں آ گیا. ارے منو کو بتاؤ میں آ گیا. اچھا تو بیٹے ہم لوگ آج کلاس سٹارٹ کریں. بڑے دنوں بعد کلاس ہو رہی. کتنے دن ہو گئے بتاؤ بھائی؟ کیا نام کر کے نیک پال. چھٹیاں گن کے بتاؤ کتنی چھٹیاں ہوئی؟ ارے ایسے ایک چھٹی نہیں بول رہا میں، ویسے گنو. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، 6 دنوں بعد مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 6 چھٹیوں کے بعد مل رہے ہیں بیٹے. کتنے دنوں بعد کی بات کر رہے ہیں؟ لکشمی نگر والے ارے باپ رے باپ بیٹے تم نے تو مجھے کیا کر دیا. میں تو کیا پریشان. کہہ رہے ہیں سر آپ کی بہت یاد آئی. بتاؤ بیٹے میں تو بس میرا تو سمجھ لو دل باہر آ گیا. میں نے رکھ دیا سائڈ پہ. کہہ رہے ہیں میری بڑی یاد آئی ان کو. بیٹے مجھے بھی آپ کی بڑی یاد آئی. ٹھیک ہے آئیے ہم لوگ کیا کریں گے سر؟ ایک تو ہم لوگ اپنے ڈیوینچرز کا بچا ہوا ہوم ورک کریں گے، لیکن وہ ابھی نہیں. ابھی تو ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے اپنی کلاس کو. ہم سب سے پہلے یہاں پر ایک اپنا کام کرتے ہیں. ایک میرے پاس ریکویسٹ ہے فائنل اکاؤنٹس کی اور ایک ریکویسٹ ہے میرے پاس پارٹنرشپ کی. حالانکہ دونوں طرح کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. جو بی کام آنرس فرسٹ ایئر کے ہیں وہ چاہتے ہیں پارٹنرشپ ہو جائے، اور جو بی کام آنرس سیکنڈ ایئر کے ہیں وہ چاہتے ہیں فائنل اکاؤنٹس ہو جائے. تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ فائنل اکاؤنٹس کرتے ہیں. اور یہ چونکہ چھوٹا ہے یہ جلدی ہو جائے گا. اس کے ٹھیک بعد ہم پارٹنرشپ کر لیں گے، اور جس سے کہ آپ کو یہ والے اسٹوڈنٹس بھی کور ہو جائیں گے، سیکنڈ ایئر والے بھی اور فرسٹ ایئر والے بھی ہو جائیں گے. پارٹنرشپ بیٹے بالکل تر و تازہ رہے گی. جب ہم اس کے بعد کریں گے تو بالکل فرسٹ کلاس ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے فائنل اکاؤنٹ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پارٹنرشپ کو سٹارٹ کر دیں گے. اس کے ٹھیک بعد ہم لوگ پارٹنرشپ سٹارٹ کر دیں گے. ہم جب پارٹنرشپ کی کلاس لگائیں گے تو ہم اپنا کلاس کا ٹائمنگ 1 گھنٹہ بڑھا دیں گے. ہم کلاس کا ٹائم کر دیں گے 4 بجے. اچھا تو ایک بچے نے پوچھا سر یہ کتنے کلاسز لے گا؟ بیٹے یہ کلاسز لے گا تقریباً 2 سے کچھ زیادہ، سمجھ لیجئے 2.5 کلاسز کے آس پاس یہ لے گا. ساؤتھ ایکسٹینشن والے بچے کہہ رہے ہیں سر آپ نے ابھی بھی کیا کہا؟ بیٹے میں نے ابھی بھی ہندی میں کہا کہ ہم لوگ اپنی کلاس کا ٹائم جب پارٹنرشپ کریں گے تو 1 گھنٹہ بڑھا دیں گے. مطلب یہ ہم لوگ 4 بجے کر دیں گے کچھ دنوں کے کلاسز کو. میں ابھی ڈسکس کروں گا، چنتا مت کرو آپ. ٹھیک ہے نا، آپ کو ٹینشن میں نہیں آنا. ابھی میں نے 4 بجے کیا نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے پوری رائے لے کر رضامندی لے کر پھر آگے چلوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے سر آگے چلنا. پھر ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ابھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے چیپٹر سے. چیپٹر کا نام کیا ہے؟ کمپنی فائنل اکاؤنٹس. اور کمپنی فائنل اکاؤنٹس کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے پاس آئیں گے پارٹنرشپ کے اکاؤنٹس پر آئیں گے. اس کے بعد ویسے کچھ ہمارے پاس زیادہ بچتا ہی نہیں ہے. پارٹنرشپ جیسی ختم ہوگی باقی تو چیپٹر چھوٹے چیپٹر سے ہو جائیں گے. آئیے میرے ساتھ ساتھ ذرا فٹافٹ سے ہم لوگ اپنے پاس کام کرنا شروع کریں. نام لکھو کمپنی فائنل اکاؤنٹس، جس کا پیج ہے 559. کمپنی فائنل اکاؤنٹس 559. لو جی یہ ہے 559. ہاں جی کانپور بیٹے ٹھیک. اس کے بعد ہم لوگ کر لیں گے اپنے پاس جو بھی آپ کا پارٹنرشپ ہے.
सर क्या फाइनल अकाउंट्स हमारे आईपीसीसी ग्रुप 1 में है? हाँ जी है, इसमें है, इसलिए आप चिंता मत करें, आपको आना ही आना है। अच्छा, लक्ष्मी नगर वाले बच्चे नालायक कह रहे हैं जी बताओ इस बार के जून के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने की संभावनाएं हैं। बेटे मुझे पता होता तो बताओ, मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे बता देता। मुझे पता होता तो निश्चित रूप में मैं सबसे पहले दिन ही बताना शुरू कर देता। इसलिए आप मुझसे ऐसी उम्मीदें ना करें। मैं बोलता हूं सब इंपॉर्टेंट है, और अगर सब इंपॉर्टेंट है तो आपको सभी के सभी पॉइंट्स करके जाना है। सर आप फाइनल अकाउंट्स में क्या कराइएगा? हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करेंगे अपने पास सबसे पहले उसके फॉर्मेट्स, और फिर करेंगे एडजस्टमेंट। सर ये वही टॉपिक है? मैंने कहा वही मतलब? सर ये वही टॉपिक है जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जो हमारे पास 11th क्लास में आया था फाइनल अकाउंट्स, फिर 12th क्लास में भी आया था कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ये वही टॉपिक है? हाँ ये वही टॉपिक है जो आपने 11th के अंदर भी देखा था और 12th में भी देखा था। बस फर्क इतना है कि मैं अपना ये सारा टॉपिक कंपनियों के एंगल से करूंगा, इसीलिए इसका नाम लिख दिया हमने आगे कंपनी फाइनल अकाउंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने पास कंपनी फाइनल अकाउंट्स कवर करेंगे। सर क्या ये चैप्टर सबसे आसान है? बेटे अगर मान लो मुझसे कोई कहे कि प्रतियोगिता कराओ और प्रतियोगिता में पता करो कि सबसे आसान चैप्टर कौन सा, तो बताऊं आपको सबसे आसान कौन सा चैप्टर है? सबसे आसान है यही कंपनी फाइनल अकाउंट्स। सर हमें यकीन नहीं होता। तुम्हारे को यकीन चैप्टर खत्म होने के बाद होगा, पहले थोड़ा ना होगा, पहले तो यकीन हो ही नहीं सकता। ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं सबसे आसान काम शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं रास्ते में आ रहा था, तो हम लोग अपने पास वर्टिकल होगा तो वर्टिकल में ही पूरा काम करके आएंगे, और अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल होगा तो उसे हॉरिजॉन्टल में ही हमेशा करेंगे। इस प्रकार से हमारी अकाउंटिंग की जाएगी। खैर एनीवे ये तो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट्स बताए हैं कि हमारे बेसिक फॉर्मेट्स क्या क्या है। एक बच्चे ने कहा है कैन वी शो प्रीवियस ईयर बैलेंसेस? बेटे जावेद हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम ऐसे प्रीवियस ईयर फिगर्स को साथ में दिखाएंगे नहीं। और इनडायरेक्ट इनकम्स जब आएंगे हमारे पास तो मैं डिस्कस कर दूंगा। साउथ एक्सटेंशन वो हमारे पास यहीं पर आती है, सेल्स एंड अदर इनकम्स के रूप में दिखाया जाता है कि हमारी अदर इनकम्स कितनी कितनी है। तो इसका मतलब हमारी अदर इनकम अगर होंगी तो आ जाएंगी। बाकी हमने इसको बारीकी से डिस्कस करना है बेटे। अभी तो मैंने केवल और केवल इसका एक बेसिक फॉर्मेट बताया है कि इसका बेसिक फॉर्मेट ये है। अच्छा अब मेरे साथ साथ आपने समझना है कुछ और छोटी छोटी बातों को। सर और कौन सी छोटी छोटी बातें डिस्कस करनी है आपने? लो बेटे अभी तो हमने बातें डिस्कस करनी है सारी की सारी। जरा फटाफट से मेरे साथ साथ हम कुछ कस्में वादे लिखेंगे। कस्में वादे? हाँ मैंने कहा ना मैं आपको ब्रेक तक बुरी तरह तंग करूंगा। अब हम कुछ बातें लिखेंगे जो आपको बहुत बुरी बुरी बातें लगेंगी। बुरी बुरी से मतलब है कि आप कहेंगे सर प्लीज और मत लिखाओ, लेकिन बेटे मुझे लिखवाना है, मैं क्या कर सकता हूं। अपने पास आपने पहला पॉइंट लिखा था फॉर्मेट, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे अपने पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिगार्ड टू कंपनी फाइनल अकाउंट्स। लो बेटे मैं कुछ बातें यहां पर लिखूंगा और इससे आपकी बड़ी सारी समस्याएं खत्म भी हो जाएंगी। जो आपकी कुछ समस्याएं हैं वो सब समस्याओं में से काफी हद तक समस्याएं आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं वो इससे खत्म हो जाएंगी। हम कुछ बातें लिखने जा रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ इसको लिखना शुरू कर दीजिए। गिनती भी लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मैं आपको कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स बताने जा रहा हूं। ये है आपके कस्में वादे जो आपने पेपर में याद रखने। भूले नहीं कि समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको याद रखना है कि आपने ये ऐसा ही करना है। जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड एसेट्स विल बी शोन एज फॉलोज। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे दिखाए जाएंगे, चाहे वर्टिकल की बात करूं चाहे हॉरिजॉन्टल की बात करूं, ऐसे ही दिखाए जाएंगे। कैसे दिखाए जाएंगे?
opening balance, additions, /deletions, closing balance, minus डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के अंदर भी ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन चार्ज। सर ये कैसी किसी शक्ल बना रहे हो? ये हमारे पास टोटल आ गया और ये टोटल ही यहां पर चला जाता है, और फिर बचेंगे फिक्स्ड एसेट्स जो बैलेंस शीट में रहेंगे। फिक्स्ड एसेट्स बेटे हमारा शेड्यूल 6 कहता है कि आपको ये हमेशा फिक्स्ड एसेट्स ऐसे ही दिखाने हैं, चाहे वर्टिकल बैलेंस शीट हो चाहे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट हो। सर लेकिन आपने तो फॉर्मेट में ऐसा नहीं लिखवाया। बेटे जब मैं असल बनाऊंगा बैलेंस शीट तो मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसे ही करूं। ये हमारी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है जिसमें आप इस प्रकार से करते हैं। मेरी बात को सारे बच्चे तो न समझ पाएंगे, लेकिन मेरी बात तो कुछ बच्चे आप में से पक्का समझ जाएंगे। जो आप में से दफ्तर जाते हैं, आप में से कोई बच्चे दफ्तर जाते हैं? बेटे दफ्तर देखा है, दफ्तर की भी एक छत होती है, एक कमरा होता है, उसके अंदर भी एक व्यक्ति बैठा होता है, एक सीए बैठा होता है। आपको दफ्तर पता है कैसा होता है? वो भी क्लासरूम जैसा ही होता है। कौन कौन बच्चे दफ्तर जाते हैं? बहुत कम। चलो कोई बात नहीं बेटे। हाँ 1 2 4 5 बच्चे ही हैं, बस ज्यादा नहीं है उसके अंदर। बाकी सब तो कह रहे हैं हाँ सुना है किस्से कहानियों में कोई दफ्तर होता है हमारे पास। चलो बेटे अब थोड़ा थोड़ा सा ना, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली सारे के सारे डमी हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर, उसके नीचे ना फिक्स्ड एसेट्स का एक शेड्यूल बना होता है। जो दफ्तर जाते हैं उन्होंने सबने देख रखा है, बल्कि दफ्तर वाले तो कह रहे थे इसे देखकर सर ये क्या कह रहे हो, हम तो फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल बनाते हैं। दफ्तर जब जाओगे तो पता चलेगा कि इन सब के लिए आप एक एनेक्स्चर बनाते हो, शेड्यूल बनाते हो, जिसमें आप सारी बातें ये लिख देते हो, और ये जो शेड्यूल होता है ये आप बैलेंस शीट के साथ लगा देते हो। मतलब ये हुआ, लॉ ये कहता है कि हमें बैलेंस शीट बेसिकली बनानी है। लॉ कहता है कि बैलेंस शीट के अंदर ऐसे दिखाना है। अब बैलेंस शीट में तो ऐसे दिखाते नहीं, तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, इस जैसा शेड्यूल एक बनाते हैं और बैलेंस शीट के साथ अटैच कर देते हैं, इसको साथ में अटैच कर देते हैं, और बैलेंस शीट में नीचे लिख देते हैं ऑल शेड्यूल्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप जब दफ्तरों में जाओगे तो पता चलेगा लिखा होगा सभी शेड्यूल्स इसके हिस्से हैं। इसका मतलब ये कि आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के साथ शेड्यूल लगा देते हैं। मेरे पेपर में शेड्यूल तो बनेंगे नहीं, इसलिए मैं अपनी बैलेंस शीट में ही ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करूंगा, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। लॉ कहता है कि मुझे अपने फिक्स एसेट्स को ऐसे दिखाना है। सर वैसे ये बताओ ये लॉ ऐसा क्यों कहता है, लॉ ऐसा क्यों कह रहा है कि ऐसे ही दिखाना पड़ेगा? बेटे लॉ का मैं आपको क्या बताऊं कि लॉ ऐसा क्यों कहता है। आपका जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि आपने सत्यवादी बनना है। आप कंपनियों में ट्रांसपेरेंसी